Hello, my dear students. How are you all? I hope you are doing well. Due to this lockdown, we didn't have classes for many days. So now onwards, we will be continuing our syllabus through these online videos. Okay, just you need to watch these videos and keep any notebook with you and write down whatever we are teaching, in these videos. Okay, and do these assignments whatever given by us. Okay, so in that way your preparation can be continued. Okay, so when we come to our syllabus, what we have completed earlier before this lockdown, we completed up to nitrogen family. Nitrogen family में half of the nitrogen family we completed. So there कहाँ तक, which concept तक था हमें डिस्कस करे थे? I think nitrogen oxides we completed. Yes, nitrogen oxides. Yes, nitrogen oxides क्या क्या है बोलिए? NO, N2O, NO2, N2O4, N2O3, N2O5. So these are the nitrogen oxides, and we have discussed their properties also. And later we discussed, after this nitrogen oxides, we discussed oxo acids of nitrogen. Okay, so oxo acids of nitrogen क्या है बोलिए? HNO2, H2N2O2, HNO3. So these are the oxo acids of nitrogens. Okay, and we have discussed in detail about all these acids. And in about nitric acid we discussed in detail its properties, its preparation method. What is the preparation method of it? Ostwals method. Okay, और इसका हमें main important chemical reaction, that identification test of NO2 group, that we have discussed, that Brown ring test. Yes, do you remember this Brown ring test? Okay, it's a very important test in qualitative analysis. We use this test, I told you. Later we stopped up to here, I think so. Okay, later also we discussed in some divisions we discussed allotropes of phosphorus, but in some divisions we have not discussed. So that's why I'm starting from here. Okay, so our lecture can be continued from here. Okay, so now I am going to start. Okay students, we start with the allotropes of phosphorus. So allotropes of phosphorus, many of the allotropes of phosphorus are possible, but we are discussing only 3 types of allotropes only. What are those? White phosphorus, red phosphorus and black phosphorus. तो ये तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. पहले white phosphorus, actually allotropes का meaning क्या है? Like carbon is also existing in diamond, graphite, fluorine, okay, and charcoal. Okay, so it is existing in crystalline form and amorphous form. In the same way, allotropes of phosphorus also existing like this. White phosphorus is the stable, is the standard state of phosphorus है. Stable नहीं, standard state है. ये क्या है? Standard state. तो standard state का meaning क्या है? तो मैं थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करे होगे. स्टैंडर्ड स्टेट का मीनिंग क्या है? द मोस्ट स्टेबल फिजिकल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, तो वो प्रेशर और टेम्परेचर पे जो फिजिकल स्टेट, स्टेबल फिजिकल स्टेट होता है, वही स्टैंडर्ड स्टेट है. तो फास्फोरस 25 डिग्री सेल्सियस पे ये वाइट फास्फोरस जैसा एग्जिस्ट होगा. और रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस कैसा फॉर्म होता है? इसको हीट करेगा तो ये रेड फास्फोरस फॉर्म होगा. और व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस दोनों को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करेगा तो ब्लैक फास्फोरस फॉर्म होगा. ओके, सो black phosphorus is forming from these two. Okay, and white phosphorus stable at room temperature. Red phosphorus is forming from white phosphorus. Okay, तो white phosphorus को हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करेगा तो वो ये फॉर्म हो रहा है रेड फास्फोरस. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट. ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे. तो व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस,
तो ये दोनों के बीच में हम डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे. ओके, तो white phosphorus I told you just now, it is standard state. Okay, and it is existing at 25 degrees Celsius also, but it is existing at high temperature. Okay, so first one we are discussing इसका फिजिकल स्टेट ये कैसा रह सकता है. सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड है. ये कैसा रहेगा? सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड है. ओके, तो सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड है ये. और ये कैसे एग्जिस्ट होगा? इट इज नॉट एग्जिस्टिंग सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड्स. अब हमें ओल्ड गियर पे चुनना रहेगा तो वो ऐसा टच करेगा तो वो कैसा ब्रेक हो जाएगा. इन द सेम वे दैट पाउडर फॉर्म में रहेगा रेड फास्फोरस. ओके, रेड कलर में रहता जनरली. ओके, और ये व्हाइट कलर में रहेगा. ओके, देन वो ऐसा ब्रिटल नेचर रहता है इसको. ओके, सो ब्रिटल पाउडर हमें बोल सकते हैं. ब्रिटल व्हाइट रेड पाउडर वी कैन से दैट. ओके, सो इट इज सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड है. इट इज ब्रिटल रेड पाउडर है. इज इट ओके? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट वी आर डिस्कसिंग इट्स स्टेबिलिटी. इट इज एक्चुअली अनस्टेबल. ओके, ये अनस्टेबल रहेगा और ये स्टेबल रहेगा. स्टेबल फॉर्म है और ये अनस्टेबल फॉर्म है. तो क्यों ये अनस्टेबल है? ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर. इट्स स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? देखिए, स्ट्रक्चर इज लुकिंग लाइक दिस. स्ट्रक्चर इज लुकिंग लाइक दिस. ओके, P4. ओके, और इसका एंगल कितना रहेगा? 60 डिग्रीज रहता. P एंगल P डिस्टेंस एंगल कितना रहता है? 60 डिग्रीज. और ये एग्जिस्ट होता है P4 डिस्क्रीट यूनिट्स जैसा. डिस्क्रीट यूनिट्स बोलते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स. ओके, तो P4 जैसा वो एग्जिस्ट हो जाएगा. दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में वो P4 जैसा वो एग्जिस्ट हो जाएगा. तो इसका स्ट्रक्चर में, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में तुमको P4 यूनिट्स इसमें रहेगा. और रेड फास्फोरस कैसा एग्जिस्ट होगा? देखो, रेड फास्फोरस इज एग्जिस्टिंग लाइक. क्यों ये स्टेबल फॉर्म है? इट इज एग्जिस्टिंग, इसका एग्जिस्टिंग नेचर ओनली. इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता? पॉलीमरिक फॉर्म. कैसा एग्जिस्ट है? पॉलीमरिक फॉर्म. सो लाइक दिस पॉलीमरिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट है. ओके, और ये ऐसा एंगल स्ट्रेन रहने वजह से ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसलिए अनस्टेबल है. एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, एंगल कम है ना, फास्फोरस के बीच में एंगल कम है, तो ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, इसका स्ट्रक्चर में ये P4 यूनिट्स टेट्राहेड्रल यूनिट्स है ये. और ये एंगल स्ट्रेन उतना नहीं है. देखो, ये एंगल ज़्यादा ही है. तो इसमें इधर एंगल 60 डिग्री से, मगर इधर देखिए ज़्यादा ही है. सो नाउ दिस इज द पॉलीमरिक स्ट्रक्चर इट इज हैविंग. ओके, एंड दिस इज P4 डिस्क्रीट इंडिविजुअल यूनिट्स. ये इंडिविजुअल यूनिट्स नहीं है, सभी कंबाइंड हो गए. ओके, सो दैट्स व्हाई दैट इज द डिफरेंस. ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल इसलिए है. ये अनस्टेबल क्यों है? एंगल स्ट्रेन है. तो इधर भी याद रख लो, एंगल स्ट्रेन रहेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा. ओके, सो मिनी मॉलिक्यूल के केस में एंगल स्ट्रेन कहाँ है कि वहाँ पे वो अनस्टेबल रह सकते हैं. और थर्ड पॉइंट क्या है? और ये कैसा रहेगा? इसका स्मेल गार्लिक स्मेल रहेगा. ओके, और इसका स्मेल कैसा रहता? देयर इज नो स्मेल फॉर दिस. ओके, इसका स्मेल गार्लिक स्मेल है, इसका स्मेल नो स्मेल है. ओके, सो लाइक दिस यू कैन डिस्कस. और ओके, नाउ ये दोनों का सॉल्युबिलिटी के बारे में देखेंगे हम. फोर्थ पॉइंट, तो सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबल हो जाएगा इन कार्बन डाइसल्फाइड, बट इट इज नॉट soluble in carbon disulfide, but it is not soluble in वाटर. ओके, वाटर में soluble नहीं होगा. ओके, तो व्हाइट फास्फोरस वाटर में soluble नहीं होगा. जनरली ये पोलर सॉल्वेंट है और वो P4 नॉन पोलर है ना, तो इसलिए वाटर में soluble नहीं होगा. मगर कार्बन डाइसल्फाइड इज ए पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसीलिए उसमें soluble हो सकता. बट ये दोनों में भी soluble नहीं होगा.
it is insoluble in water as well as insoluble in carbon disulfide. So it is insoluble in both. Okay, so this is about solubility. Next हमें डिस्कस करेंगे next difference we are discussing, that is reactivity. देखो, okay, so reactivity, it is very reactive, ये बहुत रिएक्टिव है. ओके, ये अनस्टेबल है बोलते इसलिए वो केमिकली कैसा रहेगा, बहुत रिएक्टिव रहेगा. ये केमिकली लेस रिएक्टिव है, केमिकली ये लेस रिएक्टिव है. नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस, व्हाट अबाउट केमिकल रिएक्टिविटी. हमें बोले ना, तो अब इसका क्लोरीन से रिएक्टिविटी कैसा देगा. क्लोरीन से अब फास्फोरस रिएक्ट करके इट इज फॉर्मिंग PCl3 एंड PCl5, ये दोनों को ये फॉर्म कर सकता है. और इवन दिस वन आल्सो फॉर्मिंग PCl3 एंड PCl5, बट लेस रिएक्टिव है. ओके, तो क्लोरीन से रिएक्टिविटी देखे हम. अब बर्निंग इन एयर में बर्निंग करेगा, तो बर्निंग इन एयर, तो एयर में ऑक्सीजन रहेगा ना, तो ऑक्सीजन में बर्निंग करेगा, तो P4 प्लस ऑक्सीजन, इट इज फॉर्मिंग P4O10, फास्फोरस पेंटॉक्साइड. फास्फोरस पेंटॉक्साइड का डाइमर फॉर्म है P4O10. ओके, तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड फॉर्मेशन हुआ. और इवन इन दिस केस आल्सो P4 प्लस O2 gives rise to P4O10. तो here also it is forming P4O10. ओके, और हमें वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस. अब फास्फोरस का डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या है देखेंगे हम. डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ फास्फोरस क्या है, फास्फोरेसेंस है. तो ये फास्फोरेसेंस बोल तो मीनिंग क्या है, ग्लो इन डार्क. ओके, तो हमें रात के टाइम में मेन रोड पे जाएगा, तो बाजू में तुम्हें देखेगा, तो even when you are going on vehicle also, you can see right side or left side there will be boardings, that शहर का नाम लिख के रहेगा. ओके, और it will be 30 kilometers away from here बोल के लिख के रहेगा. So that boardings, whatever is written, that are written with radium. Okay, so radium का nature क्या है, वो ग्लो हो सकता है. ओके, इवन इन डार्क आल्सो इट कैन ग्लो. सो वो नेचर को हमें बोलते हैं फास्फोरेसेंस. तो फास्फोरस इज शोइंग दिस नेचर, व्हाइट फास्फोरस शोइंग, बट दिस इज नॉट शोइंग दैट नेचर. ओके, सो इट डजंट शो दिस नेचर. ओके, so red phosphorus doesn't show that nature, but phosphorescence is shown by white phosphorus. Okay, तो white phosphorus glow हो सकता है, but red phosphorus glow नहीं होगा. Okay, are you getting my point? Next, this is the 8th point we discussed, है ना. Next, अब HNO3 से हम रिएक्शन देखेंगे नाइट्रिक एसिड से. तो नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अब फास्फोरस से क्या बन सकता है, फास्फोरिक एसिड H3PO4 बनेगा. ओके, whenever this is nitric acid is reacting with HNO3, that is giving phosphoric acid. And same ये भी same reaction दे सकता है नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड and P4, that is red phosphorus. Even this one also giving H3PO4. Are you understanding? So these are the main differences between white phosphorus and red phosphorus. Okay, तो white phosphorus और red phosphorus के बीच में क्या क्या डिफरेंस है पहले से देखेंगे हम. फर्स्ट डिफरेंस इज इसका सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड है, इसका एग्जिस्टेंस देखेगा तो, और इसका एग्जिस्टेंस कैसा है, ब्रिटल रेड पाउडर है. ओके, और ये गार्लिक स्मेल आएगा और वो स्मेल नहीं आएगा, रेड फास्फोरस स्मेल नहीं आएगा. एंड थर्ड पॉइंट क्या है, इसका स्टेबिलिटी देखेगा तो ये अनस्टेबल है और वो स्टेबल है. ये वेरी रिएक्टिव है, ये वेरी लेस रिएक्टिव है. क्यों मतलब एंगल स्ट्रेन वजह से ये वेरी रिएक्टिव है, ये अनस्टेबल हो गया एंड रिएक्टिविटी बढ़ गया है इसका. फाइन.
तो ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ओके। उसका स्ट्रक्चर क्या है, P4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स है, P4 टेट्राहेड्रल इंडिविजुअल यूनिट्स में वो उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में वो एग्जिस्ट होके रहेगा, ओके। सो इसीलिए हमें वाइट फास्फोरस अनस्टेबल बोल सकते हैं। बट स्टैंडर्ड स्टेट को जैसा हमें कंसिडर करना है। स्टैंडर्ड स्टेट क्यों बोल रहे हैं, वो तो ये स्टेबल है एट रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टेबल है, इसलिए ये स्टैंडर्ड स्टेट है, ओके। नेक्स्ट रिएक्टिविटी विथ क्लोरीन PCl3 PCl5 फॉर्मेशन दोनों भी होते हैं, और बर्निंग इन एयर दोनों भी P4O10 को तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड को बना रहे हैं, ओके। एंड फास्फोरस देखेगा तो ये ग्लो इन डार्क, बट दिस इज नॉट ग्लोइंग इन डार्क, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस, you have to learn this, okay। एंड सॉल्युबिलिटी देखेगा तो कार्बन डाइसल्फाइड में ये सॉल्युबल हो गया, मगर वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, बट ये दोनों में भी इनसॉल्युबल है, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करता वो ऑक्सीडाइज हो गया, 0 से क्या हुआ +5 में कन्वर्ट हुआ। इधर देखिए फास्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट P4 में 0, बट यहाँ पे कितना हो गया +5 हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में रिएक्ट करेगा तो तब phosphorus is becoming phosphoric acid, even red phosphorus also giving same reaction, okay। So these are the main differences. Now we are going to discuss black phosphorus. This is about black phosphorus के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ब्लैक फास्फोरस कैसा फॉर्म होता है, एक्चुअली आई टोल्ड यू रेड फास्फोरस कैसा फॉर्म होगा, व्हाइट फास्फोरस को 573 केल्विन पे हम टेम्परेचर पे हीट करेगा तो रेड फास्फोरस फॉर्म हो रहा है, ओके। और ब्लैक फास्फोरस कैसा फॉर्म होता है, इसमें 2 टाइप ऑफ फास्फोरस ब्लैक फास्फोरस है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस, ओके। तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस इज फॉर्मिंग फ्रॉम व्हाइट फास्फोरस से अल्फा ब्लैक फॉर्म होगा, और रेड फास्फोरस से बीटा ब्लैक फॉर्म होगा। तो व्हाइट फास्फोरस को हमें कितना टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, 803 केल्विन टेम्परेचर, रेड फास्फोरस को 473 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेगा तो बीटा ब्लैक फॉर्म होगा, ओके। सो अल्फा ब्लैक कैसा फॉर्म हो रहा है, व्हाइट फास्फोरस को हमें 803 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेगा तो, और बीटा ब्लैक फास्फोरस कैसा फॉर्म हो रहा है, रेड फास्फोरस को 473 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेगा तो फॉर्म हो रहा है, ओके। सो ये अल्फा ब्लैक जनरली वो उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसा रहता, राम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक, ये दोनों क्रिस्टल सिस्टम्स है, ओके। तो राम्बोहेड्रल तुम्हें सॉलिड स्टेट में इसको डिस्कस करते, उसका शेप, उसका यूनिट सेल का शेप राम्बोहेड्रल शेप रहेगा, नहीं तो मोनोक्लिनिक भी रह सकता है। तो राम्बोहेड्रल मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स पॉसिबल है, फाइन। और ये जो है इट इज नॉट बर्निंग इन एयर, ओके। ये सबलाइम हो जाएगा, इट इज नॉट बर्निंग अप टू 673 केल्विन, ओके। एंड ये क्या होता है, सबलाइम होता है इन एयर, सबलाइम में बोल तो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ओके। ये एयर में ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट वेपर स्टेट में जा रहा है, बस सबलाइम हो रहा है, मीनिंग क्या है, तो ये अल्फा ब्लैक फास्फोरस इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू vapor state, okay। And beta black phosphorus is not oxidizing up to 673 Kelvin. Above this temperature it can be oxidized, okay। Oxidize बोल तो ये उसका ऑक्साइड को फॉर्म करना है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। अब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हो जनरली P4O10 वैसा फॉर्म होना है ना, तो वो नहीं हो सकता है अप टू 673 केल्विन, और ये सबलाइम हो जाएगा इन द एयर, तो व्हेन यू हीट इट इट विल बी सबलाइम्ड, इट विल बी कन्वर्टिंग इनटू वेपर स्टेट, तो ये ऑक्सीडाइज ही नहीं हो रहा है, समझ में आ गया ना। सो दैट इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। दिस इज अबाउट ब्लैक फास्फोरस, ओके। तो ब्लैक फास्फोरस एंड वी डिस्कस्ड रेड एंड व्हाइट फास्फोरस, एंड मेन वन मोर डिफरेंस इज देयर, रेड एंड व्हाइट फास्फोरस के बीच में वन डिफरेंस क्या है, वो P4 NaOH से रिएक्ट करके it is giving phosphine gas, okay, and NaH2PO2, sodium hypophosphite, ये क्या है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, और ये क्या है, फास्फीन। तो ये व्हाइट फास्फोरस इससे रिएक्ट करके, व्हाइट फास्फोरस NaOH से रिएक्ट करके फास्फीन को
रिलीज करेगा, फास्फिन गैस को रिलीज करेगा। So this is about black phosphorus. Okay, so black phosphorus, we completed 3 types of phosphorus. तो रेड एंड वाइट फास्फोरस के बारे में डिस्कस करें, और नाउ ब्लैक फास्फोरस। एंड रेड एंड वाइट का बीच में और एक भी डिफरेंस है, दैट इज NaOH से रिएक्ट करेगा तो फास्फोरस, NaOH से रिएक्ट करेगा तो वाइट फास्फोरस आई एम सेइंग अबाउट, so that will be giving phosphine gas PH3 and sodium hypophosphite। ये फार्मूला क्या है देखो, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। और ये क्या है, फास्फीन गैस, फास्फीन गैस। इसके एप्लीकेशंस बहुत है, हमें डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ओके, नेक्स्ट सेशन में। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ओके ना। सो नेक्स्ट इसका केस में, रेड फास्फोरस केस में, रेड फास्फोरस डजंट गिव दिस, NaOH से रिएक्शन नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है, ये वाइट दैट इज टेट्राहेड्रल फास्फोरस डिस्क्रीट यूनिट्स है इसमें, और ये अनस्टेबल है, ये मोर रिएक्टिव है, तो इसीलिए ये रिएक्टिविटी बता रहा है NaOH से, बट ये नहीं बता रहा है, ओके। रेड फास्फोरस नहीं बता रहा है। एंड द लास्ट डिफरेंस इज ये नॉन पॉइजनस है, वाइट फास्फोरस पॉइजनस है और रेड फास्फोरस नॉन पॉइजनस। Okay, so finally we discussed about all these three. Okay, white phosphorus और red phosphorus के बारे में डिस्कस करें, और ये black phosphorus के बारे में हम डिस्कस करें। फाइन। सो नेक्स्ट सेशन में हमें डिस्कस करेंगे PH3 के बारे में, फास्फीन। ओके, NH3 बोल तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड है वो, NH3 अमोनिया वी आर कॉलिंग, एंड फास्फोरस का हाइड्राइड को हमें कहते हैं फास्फीन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So let us discuss about phosphine. Okay.